Hello everyone. Today we will discuss about next phylum Aschelminthes. Another name for this phylum is Nematoda. One more name for this phylum is Nemathelminthes. So we are discussing about phylum Aschelminthes or Nemathelminthes or Nematoda. In last lecture, we discussed about phylum Platyhelminthes. So there is one common word, helminths. Platyhelminthes, Aschelminthes. Helminths actually is derived from a Greek word helmintho, which means intestinal worm. Means दोनों फाइलम के अंदर जो मेंबर्स हैं मोस्टली मेंबर्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन as well as another animal. So Nematoda, Aschelminthes or Nemathelminthes. Member of this phylum are commonly known as roundworm. Roundworm. Platyhelminths को हमने क्या कहा था? Flatworms, because their body was flattened just like leaf. यहाँ पर जो बॉडी है दैट इज़ राउंड. जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक चौक है तो चौक को अगर हम सरफेस व्यू से देखें तो इट इज़ सर्कुलर. और अगर हम चौक को ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो इट विल अपीयर लाइक सर्कुलर. ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जैसे एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन आपने देखा होगा 10th क्लास में. एलिमेंट्री कैनाल इज अगेन ए होलो ट्यूब. तो जब हम उसको कट करेंगे तो चारों तरफ तो उसकी बाउंड्री होगी और सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूमन. सो नीमेटोड आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म बिकॉज व्हेन वी कट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स दे अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन. राउंड वर्म्स. ध्यान रहे एस्केरिस एनिमल अगर हम देखें इट अपीयर लाइक अर्थवर्म. अर्थवर्म आई होप यू हैव नॉट सीन इट. सी दिस इज एस्केरिस. अगर हम सरफेस व्यू से देखें बॉडी ऑफ एनिमल इज नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स. अगर हम अर्थवर्म को देखें तो वो भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा जैसे फीमेल, जहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली फीमेल एस्केरिस. फीमेल एस्केरिस के जैसा ही सिलिंड्रिकल बॉडी है अर्थवर्म की, लेकिन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एस्केरिस एंड दिस इज अर्थवर्म? In case of earthworm is a member of phylum Annelida, and in case of earthworm body is metamerically segmented. This already we have discussed in earlier video. In case of Ascaris there is no segmentation. So without segments this is Ascaris. And one more slide I have arranged just now. See, one is leech. On left hand side of the paper is leech. Leech is again having large number of segments, and this is Nereis. Both these are member of phylum Annelida. So in case of Annelida body is divided into segments, but in case of Nematoda or Aschelminthes body is not divided into segments. So on the basis of segmentation you can identify morphologically that this is Ascaris and this is earthworm. So moving on to phylum Nematoda or Aschelminthes or Nemathelminthes. They are commonly known as roundworm because their body appear circular in cross section. और इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? राउंडवर्म. देयर इज नो सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन 3 फाइलम का फीचर है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा. सो सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा. Unique feature of this phylum is pseudocoelomate. Pseudo means false. This term also we have discussed earlier. Pseudocoelomate means body cavity is there, but this body cavity is not lined by mesoderm. And how the mesoderm is present? Try to recall.
mesoderm is present in form of separate patches. So such type of animals are known as pseudocoelomate. ध्यान रहे, this is unique feature of phylum Aschelminthes because pseudocoelomates are only members of phylum Aschelminthes. Endoparasites, mostly members are endoparasites just like प्लेटीहेलमिन्थिस. सो अगर क्वेश्चन आए कॉमन कि हेलमिन्स जो है, सो हेलमिन्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. सो प्लेटीहेलमिन्स एज वेल एज एस्कहेलमिन्स दोनों ही क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं. दे आर फ्री लिविंग, some are free living form, they can be aquatic or terrestrial. This is the same feature which we have discussed in phylum Platyhelminthes. Just like earlier one, you have to correlate each and every term with remaining phyla. जैसे अगर हमने बोला राउंड वर्म्स, एस्कहेलमिन्स आर राउंड वर्म, तो इसी पॉइंट के साथ पीछे जाएंगे. प्लेटीहेलमिन्स आर नोन एज फ्लैट वर्म्स. स्पंजेस आर नॉन एज, पोरीफेरा के मेंबर को हम कहेंगे स्पंजेस. सिलेंट्रेट्स को हम कॉमनली क्या कह रहे हैं, नीडेरिया, और सिलेंट्रेट्स को हम नीडेरिया कह रहे हैं. टीनोफोर्स आर कॉमनली नॉन एज कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट. तो ये सब पॉइंट आपको बार बार रिपीट करने हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए. सूडोसीलोमेट की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाला जो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस, दैट इज एसीलोमेट. मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्स है एंड एस्कहेलमिन्स, इन दोनों फाइलम के मेंबर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं. उससे पहले जो हमने पढ़े थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मोस्टली एनिमल्स फ्री लिविंग हैं. लेकिन प्लेटीहेलमिन्स और एस्कहेलमिन्स में मोस्टली आर endoparasites, but some are free living, and these free living form can be aquatic as well as terrestrial. Coming to general feature, bilateral symmetry, ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब यहाँ से याद होना चाहिए बायलेटरल सिमेट्री, बार रिपीट करना है आपको, रिवाइज करना है. बायलेटरल सिमेट्री कौन से फाइलम से स्टार्ट हुई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से. इसी तरह वेरी सॉरी, बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों ही फीचर कौन से फाइलम से स्टार्ट हुए हैं, प्लेटीहेलमिन से. तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. एस्कहेलमिन्थ ऑनवर्ड, सभी ऑर्गेनिज्म में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑल एनिमल्स आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड इस फाइलम का अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. दे आर हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ध्यान रहे, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेलमिन से स्टार्ट हुआ है. सूडोसीलोमेट इसी फाइलम का फीचर है और आगे किसी और मेंबर में नहीं मिलेगा. तो आपके माइंड में अलग अलग पॉकेट्स में ये बातें होनी चाहिए कि राउंड वर्म हम एस्कहेलमिन्स को कह रहे हैं, सूडोसीलोमेट भी हम किसको कह रहे हैं, एस्कहेलमिन्स को. मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, ये फीचर शेयर करेंगे प्लेटीहेलमिन्स के साथ. फ्री लिविंग भी हैं, कुछ मेंबर फ्री लिविंग है जस्ट लाइक प्लेटीहेलमिन्थिस. बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर कहाँ आया, प्लेटीहेलमिन्स में, तो आगे सभी फाइलम में रहेगा. बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को ये याद कराने की कोशिश करें बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर कौन से फाइलम से ओरिजिनेट हुआ है, प्लेटीहेलमिन्थिस. प्लेटी में हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा. यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम. तो ये पॉइंट आप यहाँ से लर्न करेंगे. एस्कहेलमिन्थिस ऑनवर्ड देयर इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या बताया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स there is separate opening for ingestion, that is intake of food. किससे होगा intake of food, mouth से. and egestion means elimination of undigested food from the body, that is anus. So alimentary canal is having two separate opening, mouth as well as anus. So these animals have complete digestive tract with muscular pharynx. This pharynx will help in इनटेक ऑफ फूड. बॉडी प्लान हमने पीछे भी डिस्कस किया था. 3 तरह की बॉडी प्लान होती है, ये हम टर्मिनोलॉजी में स्किप कर गए थे और पोरीफेरा में भी शायद हमने नहीं लिखा, लेकिन सिलेंट्रेटा फाइलम को डिस्कस करते हुए मैंने इसको शेयर किया था. ध्यान से पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी प्लान.
cell aggregate body plan means body just mass of cell. This is found in phylum Porifera. उसके बाद हमने पढ़ा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान उन एनिमल्स में मिलेगा जहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एंड ओनली माउथ इज प्रेजेंट. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बहुत आसान है इसे समझना. जैसे अगर हम अपनी बॉडी को ट्यूब माने तो हमारी बॉडी की के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक और पाइप प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल. सो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. Animals which are having complete digestive tract will be having tube within tube body plan. Moving on to next slide. एक और नया फीचर आ रहा है यहाँ पर. इससे पहले जो भी हमने फाइलम पढ़े उनमें ज़्यादातर मेंबर बाइसेक्सुअल थे, हर्मेफ्रोडाइट थे. इस फाइलम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं. डायोसियस वर्ड भी हम इनके लिए यूज कर सकते हैं. डायोसियस मीन्स हैविंग ओनली वन सेक्स. Sexes are separate means male animal is different and female animal is different. So sexes are separate, male and female are different and they are unisexual. एक ही बात को हम कई तरीके से कह रहे हैं. They are unisexual. They are dioecious. Dioecious means male अलग है, female अलग है. Sexes are separate means male reproductive system एक organism में होगा और female के अंदर female reproductive system होगा. Coming to sexual dimorphism, यहाँ पे little mistake is there. वर्ड आएगा डाई. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, DI. हालांकि हमने टर्मिनोलॉजी में इस वर्ड को डिस्कस किया है. व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? यस, सी दिस इज एस्कैरिस. एस्कैरिस इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म. 9th क्लास में यू माइट हैव स्टडीड. एस्कैरिस एक पैरासिटिक nematode है which is found in our small intestine and cause the disease ascariasis. ascaris में अगर हम देखें first picture is of male. focus on its hind end. its hind end is curved. यहाँ देखिए इसका जो posterior most part है जहाँ पर male लिखा हुआ है ये इसका posterior most part है and this is curved. फीमेल में डायग्राम को अगेन नो डाउट यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड हो गया है लेकिन पोस्टीरियर एंड को देखेंगे. पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट. ये कर्व सिर्फ क्या दिखाया है कि जब एनिमल मूव करेगा तो उसकी बॉडी की डिफरेंट शेप रहेंगी. लेकिन ध्यान रहे जो एंड है इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेट. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बाय सीइंग द पिक्चर कि जो फीमेल है उसमें भी आप कहेंगे कि ये तो कर्व्ड है. posterior most part is not curved. Compare posterior end with that of male. So in male ascaris posterior most part is coiled whereas in case of female it is straight. So this is sexual dimorphism. एक चीज़ और नोट करेंगे ज़्यादातर एनिमल्स में जो मेल हैं दे आर शॉर्टर देन फीमेल. फीमेल आर मच लॉन्गर देन मेल. सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम. हम यूनिक फीचर नहीं कहेंगे बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हायर फाइलाज में एनिमल कैसे होते जाएंगे यूनिसेक्सुअल और कुछ एनिमल्स में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे यस दिस इज़ मेल दिस इज़ फीमेल. तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट फीचर है जो अभी तक किसी फाइलम में नहीं है लेकिन आगे आने वाले जो फाइलम हैं वो शेयर करेंगे. सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट्स में कुछ यूनिसेक्सुअल हैं कुछ बाइसेक्सुअल हैं. बायोलॉजी इज़ वेरी वास्ट एक्चुअली. जो एनिमल किंगडम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट. लॉट ऑफ वेरिएशंस आर देयर बट डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ओनली ऑन NCERT. अपने फैक्ट्स को डाइल्यूट नहीं करना है. वॉट एवर इज़ रिटन इन द बुक यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट लाइन. So sexes are separate means unisexual, dioecious. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism means morphologically we can differentiate this is male, this is female. जैसे हमने ascaris पिक्चर में देखा कि male ascaris is smaller than female and its hind end is curved. So male are generally shorter than female.
आगे बहुत कॉमन जो हैं पॉइंट्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगेन ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, फीचर कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है। लास्ट में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसे लर्न करना है। आपको 2 कैटेगरीज में लिखते चले जाना है, किन किन फाइलम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और कहाँ एक्सटर्नल है। कुछ में बुक में गिवन नहीं है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल एज वेल एज external. So here fertilization is internal, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट है। अभी तक जो भी हमने फाइला पढ़े उनमें लार्वल स्टेजेस आर देयर, बट इन केस ऑफ एस्कहेलमिंथिस इन सम केसेस देर आर नो लार्वल स्टेज, सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया एज वेल एज यूरिया, जो एक्वेटिक फॉर्म है उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा अमोनिया। टेरेस्ट्रियल एंड जो पैरासिटिक फॉर्म है उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या रहेगा, यूरिया। इसको भी आप समझ कर लर्न कर सकते हैं। अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। जो एनिमल वाटर लॉस कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया। दूसरा, उनके पास ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही अमोनिया बना तुरंत बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। थोड़ी अमाउंट में भी अगर बॉडी में स्टोर होता है इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। शुरू के जो फाइला हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ज़्यादातर अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं बिकॉज देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड दे आर एबल टू एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू बॉडी सरफेस जस्ट बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो जो एक्वेटिक एनिमल हैं जिनमें पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, दूसरा उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि बिना वेट करे, बिना टाइम का वेस्टेज करे, लगातार वो बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं, अमोनिया। वो ही एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट कर पाएंगे। अदरवाइज अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक, अगर बॉडी में स्टोर होता है इट में लीड टू डेथ ऑफ द एनिमल। सो जो एक्वेटिक फॉर्म है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है एंड पैरासिटिक, ये हमने पीछे प्लेटी हेलमिन्स में भी पढ़ा, पैरासिटिक फॉर्म क्या एक्सक्रीट करेंगी, यूरिया। एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय एक्सक्रीटरी ट्यूब, इसको हम रेनेट सेल भी कह सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा में देखें तो एस्केलमिन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज रेनेट सेल। सो ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब में क्या होगा कि जो बॉडी की कैविटी के अंदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो फिल्टर होकर कहाँ आ जाएंगे, एक्सक्रीटरी ट्यूब में, एंड थ्रो एक्सक्रीटरी पोर दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। सो दिस इज एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन अगर हम देखें, कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, फ्री लिविंग फॉर्म में रेस्पायरेशन विल टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। और पैरासिटिक फॉर्म में अगर वो ऐसी जगह है जैसे एस्केरिस हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज नो ऑक्सीजन, सो एनिमल कैसे रहेंगे, एनारोबिक, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने डिस्कस किया एस्केरिस, बुक में डायग्राम भी गिवन है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज डायग्राम्स ओनली। द डायग्राम शुड बी only from books, you have to study diagram only from books, you should know what labeling is provided in the books and you have to strictly follow these diagrams only. Ascaris राउंडवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, कौन सी डिजीज़ करेगा, एस्केरियसिस, इसको 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। वुचिरेरिया, वुचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ए बी प्लेट एस्केलमिन्स है। फिलेरियल वर्म इसको हम कहेंगे, इट कॉज द डिजीज फिलेरियसिस और एलिफेंटियसिस। पैरासिटिक है, अब ध्यान दीजिए, एस्केरिस इज ए पैरासिटिक एस्केलमिन्थिस, वुचिरेरिया इज ऑल्सो ए पैरासिटिक हेलमिन्थिस। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल हुकवर्म है, ये भी एक पैरासिटिक नीमेटोड है। एंड तीनों एस्केरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, एनसाइलोस्टोमा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, लेकिन जो वुचिरेरिया है दैट इज फाउंड इन लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। सो एस्केरिस इज ए पैरासाइट, वुचिरेरिया, एनसाइलोस्टोमा, ऑल दीज आर पैरासाइट्स।
Moving on to next example, Maloidy gynae incognitia. What is the word? Maloidy gynae incognitia. अब डेली हम नए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक बारी तो आपको लगेगा कि क्या मैम रोज़ एग्जाम्पल्स ले आती हैं। क्या करना है कि आपको, जैसे मैं वर्ड बोल रही हूँ मेलोइडी गाइनी इनकोग्निटिया, साथ साथ बोलना है। इस वर्ड को 3-4 बार बोलेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि यस यू आर फेमिलियर विद द वर्ड, और आप इसको जानते हैं। ठीक है, जानना ही तो है हमें, और जानेंगे तो नाम याद भी हो जाएगा। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे क्लास में कोई भी नया स्टूडेंट आए, पहले दिन तो आप उसका नाम नहीं जानते, लेकिन अब आप सबका जानते। इट मीन्स यू आर वेरी मच क्यूरियस अबाउट द नेम, और आपने उन नेम को इनडायरेक्टली लर्न ही किया है। वैसे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मैम हमने याद नहीं किया। याद नहीं किया तो फिर आप बता कैसे सकते? ऑब्वियसली यू हैव लर्नड, एंड वाई यू हैव लर्नड? because you have some curiosity, you are having desire to know what is the name of the student of your class। तो इसी तरह यहाँ पर आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे सारे फाइलम के मेंबर्स के नाम याद हैं या नहीं। अभी हम इनको चैप्टर वाइज जो है फाइलम वाइज पढ़ रहे हैं। अभी से आपको एक्सरसाइज करनी है कि एक नोटबुक में अलग से असाइनमेंट आपको स्टार्ट करना है, जहाँ पर आप नेम्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ओनली। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स। तो आप नई नोटबुक भी लगा सकते हैं, या उसी नोटबुक में पीछे के कुछ पेज इसके लिए फिक्स कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली उन फाइलम्स के मेंबर्स के नाम लिखेंगे। और जब भी आप सोएंगे या उठेंगे या कोई भी आपका मन नहीं है पढ़ने का, तो एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाएंगे और उन वर्ड्स को आप लर्न करते रहेंगे। एस्केरिस राउंडवम, वुचीरेरिया, यहाँ हो गया था, वी वर ऑन लास्ट पॉइंट। मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। मेलोइडी गाइनी इनकॉग्निटिया इज ए पैरासिटिक नीमेटोड प्लांट्स में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पिक करना है। जो एस्केल्मिन्स हैं, दे आर एंडोपैरासाइट्स इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। ध्यान रहे, कोई भी एग्जाम्पल हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। अब आप देखेंगे बुक में आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम 12th क्लास। Meloidy gynae incognitia. This is a pathogenic nematode in plants which affect roots of the plants and cause tumor formation. Plants की root को affect करेगा and it will result in tumor formation. Moving on to next example. Next example is Caenorhabditis elegans. क्या word है? Caenorhabditis elegans. ये भी एक nematode है, फ्री लिविंग है। ध्यान रहे यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले बताया था मोस्टली एंडोपैरासाइट है। हमारे एग्जाम्पल में भी अब तक सब एंडोपैरासाइट्स ही आए हैं। यस, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो फ्री लिविंग है। दिस इज फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो हैव टेकन फ्रॉम 12th क्लास। Caenorhabditis elegans, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड। नॉन पैथोजेनिक मीन्स डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ डिसीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राइचिनेला। एक्स्ट्रा में है, AIPMT क्वेश्चन रहा है पीछे कभी कुछ चैप्टर से, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर जो है 1 या 2 क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स बाहर से आते रहे हैं। सो मैंने उनको भी इंक्लूड कर लिया है सो दैट यू कैन सोल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स वेरी इजीली। सो ट्राइचिनेला इज ट्राइचिनावम। ट्राइचिनेला, ट्राइचिनावम। और ये क्या शो करेगा? विविपेरी। विविपेरी मीन्स ऑर्गेनिज्म विच डिलीवर यंग वन। तो यहाँ पर ये एक्चुअली स्ट्रिक्ट सेंस में विविपेरी नहीं है, बिकॉज देर इज नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन। बट वाई वी आर सेइंग देम विविपेरस? बिकॉज दे डू नॉट ले एग, दे डिलीवर यंग वन। डेवलपमेंट जो है एग का, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट दैट दे शो विविपेरी। ट्राइचिनेला और ट्राइचिनावम शो विविपेरी। एंटीरोबियस और ऑक्सीयूरिस, दिस इज पिनवम। एंटीरोबियस और ऑक्सीयूरिस, कॉमन नेम इज पिनवम। पिनवम हम इनको क्यों कहते हैं? जनरली ये जो पैरासाइट है, ये भी नीमेटोड मिलेगा इंटेस्टाइन में, एंड थ्रो अनडाइजेस्टेड फूड जो पैरासाइट्स हैं दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। और जनरली क्या होगा कि दे विल कॉज ईचिंग इन द एनल एरिया। ईचिंग का मतलब होता है खुजली। इस और वो पिन की तरह पायर्स करेंगे, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? पिनवम। एंटीरोबियस और ऑक्सीयूरिस।
one more example I have added, that is trichuris. Trichuris is actually whipworm. So they are most common, अगर हम intestinal parasites की बात करें, which are responsible for causing different type of digestive disorder. एलिमेंट्री कैनाल के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जब भी हम बोलते हैं माउथ इज केप्ट ओपन, जब भी हम खाना खाते हैं, सो लॉट ऑफ चांसेस आर देयर दैट लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स थ्रू फूड एयर एंटर इन अवर एलिमेंट्री कैनाल. सो इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन है वो जनरली बैक्टीरिया और वायरस की वजह से है मोस्ट कॉमन, और साथ में बैक्टीरिया और वायरस के अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में रिस्पॉन्सिबल हैं. सो यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उन पैरासाइट्स के विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. जैसे एस्केरिस है, एनसाइलोस्टोमा है, राउंडवर्म, हुकवर्म, कॉमन नेम मैं ले रही हूँ, राउंडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, इसी तरह थ्रेडवर्म. थ्रेडवर्म का भी जैसे कुछ जगह क्या है कि साइंटिफिक नेम जो है थ्रेडवर्म का, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेडवर्म्स आर देयर, तो इसलिए हमने साइंटिफिक नेम नहीं लिखा है यहाँ पर. और सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स. सो एग्जाम्पल एक बार फिर देखेंगे, एस्केरिस राउंडवर्म इंटेस्टाइन में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, कॉज द डिजीज एस्केरियसिस. वुचिरेरिया फिलेरियल वर्म कॉज द डिजीज फिलेरियसिस और एलिफेंटियसिस. एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा में एग्जाम्पल इज हुकवर्म, सॉरी कॉमन नेम इज हुकवर्म. मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निटिया पैथोजेनिक नीमेटोड है प्लांट्स में. सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है. वाई बुक में ये एग्जाम्पल क्यों गिवन है और कहाँ गिवन है ये भी हम पढ़ लेते हैं जब हमने एग्जाम्पल लिखा है. एक तो ये जो टाइप स्पेसिमेन है, टाइप स्पेसिमेन मतलब किसी भी ग्रुप को स्टडी करने के लिए जो एनिमल हम डिटेल में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, टाइप स्पेसिमेन. जैसे मान लीजिए आपको मैमेलिया क्लास को स्टडी करना है, तो आप मैमेलिया क्लास में जनरली बुक्स में देखेंगे हायर क्लासेस में, या तो आपको रैट का एग्जाम्पल मिलेगा या रैबिट का. रैट को हमने डिटेल में स्टडी किया और उसके बेस पर हम कहेंगे कि मैमल में दीज टाइप ऑफ फीचर्स आर फाउंड, तो उसको हम कहेंगे टाइप स्पेसिमेन. जैसे आपकी 11th क्लास में आर्थ्रोपोडा फाइलम में टाइप स्पेसिमेन क्या है, कॉकरोच. टाइप स्पेसिमेन की खास बात क्या है, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और उस फाइलम के मोस्टली फीचर्स वो शो करे, तो वो टाइप स्पेसिमेन कहलाएगा. तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा कि हर एनिमल को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बाय स्टडिंग कॉकरोच आप आइडिया लगा सकते हैं कि आर्थ्रोपोड में इस तरह के फीचर्स हैं और इस तरह के सिम्टम्स हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, तो दैट इज़ टाइप स्पेसिमेन. सो नीमेटोड को स्टडी करने के लिए टाइप स्पेसिमेन क्या है, सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस. एस्केरिस भी यूज़ करते हैं बट सी एलिगेंस को भी करेंगे. सी एलिगेंस मीन्स सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि जायगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, लार्वा बनेगा, अडल्ट बनेगा, उसमें भी किसका रोल है, सी एलिगेंस का. सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस इज ए वंडरफुल लेबोरेटरी मटेरियल टू स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी. बुक में क्या गिवन है वो पॉइंट अभी हमारा रह गया है. सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस एग्जाम्पल है उस नीमेटोड का जिसका जीनोम सीक्वेंस कर चुके हैं. अब जीनोम का मतलब है, कॉमन सेंस में लेते हैं अभी क्योंकि आपने आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा है इससे रिलेटेड. सी एलिगेंस का जो डीएनए है उसमें किस तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस की, न्यूक्लियोटाइड की. फिलहाल के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा अभी हम नहीं बता पाएंगे बिकॉज दिस इज़ अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस टोटली, बट एट दिस टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ, ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट डीएनए को हमने सीक्वेंस कर लिया है, किसका, सी एलिगेंस का. ये कुछ एग्जाम्पल्स में से हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम सीक्वेंस कर चुके हैं, तो उसमें नीमेटोड में किसका कर चुके हैं, सी एलिगेंस का. नहीं भी याद रहे, नो नीड टू वरी एट ऑल, 12th क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए आपको याद रख लेना है कि सी एलिगेंस इज ए नीमेटोड, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये हो सकता है, हालांकि अभी तक आया नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको 3-4 एनिमल गिवन हो और ग्रुप में,
और आपको ये बताना हो कि इनमें से एस्केल्मेंट्स कौन है। तो हो सकता है उसमें आपको ऑप्शन में सी एलिगेंस मिले, या ये एक वर्ड हमने लिखा था मेलोडी गायनी इनकॉग्निटिया, ये भी मिल सकता है। तो यू शुड बी एबल टू नो कि मेलोडी गायनी इनकॉग्निटिया एक नीमेटोड है, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस भी क्या है, नीमेटोड। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम एस्केल्मेंथिस। कॉमन पॉइंट्स अगर हम फिर देखें जो बाकी फाइलम से डिफरेंट हैं या यहीं से स्टार्ट होंगे, कॉमनली दे आर नोन एज राउंड वर्म, यूनिक फीचर इज सूडोसीलोमेट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ से आगे सब जगह क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है विद मस्कुलर फेरिंग्स, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, मोस्टली मैमल्स यूनिसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बस बाकी तो जस्ट सिंपल पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम एस्केल्मेंथिस। आई होप you are learning all the material which I am providing to you, because very important thing that you have to be regular in your studies. So I hope you will take care of my words. With this, have a good day.